Greetings to one and all. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your friend, mentor and guide हर्षवर्धन त्रिपाठी. स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हम आपके सामने एक ऐसा आर्टिकल लेके आए हैं, एक ऐसे डिस्कशन को लेके आए हैं जो आमतौर पे आप देख तो रहे हैं पर आप उस पर शायद गहन विचार नहीं कर पा रहे. यू आर नॉट अनएबल टू थिंक एंड प्रोसेस एज टू व्हाट आर द लीगल implications of such judgment and such developments which we see on current affairs. बात हो रही है पीएमएलए की, बात हो रही है यूएपीए की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. Now both these acts, both these statutes in itself provide wide amplitude of power of police, right, to different agencies, for that matter NIA and ED. Now in criminal law there is a general presumption that you are innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Now this is a criminal law principle which says that you are innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. But when it comes to the position of an accused under PMLA, under UAPA, then the entire presumption is overturned, or you can say the presumption of innocence is shadowed by presumption of guilt, which means that the burden of proof in usual criminal matters always stays on the prosecution. The prosecution, that is the complainant, the informant, the police, together have to find evidences to make sure that the person, that the allegation they are leveling against an individual are true. But when it comes to PMLA and UAPA, this presumption of innocence is presumption of guilt. Now here, the prosecution will put evidences against an accused. All the evidences of the accused against the accused shall be deemed to be true, and the burden now is on the accused to disprove those evidences. Based on this, or you can say out of this, the crux of this is reflected in arrest provisions, where in normal criminal procedure the police authority have to fulfill certain conditions. Earlier they were mentioned in part 5, in chapter 5 of criminal procedure code, that is the powers of the police to make an arrest. But when it comes to special law of PMLA and UAPA, there are different provisions under these special laws which enable the police to make an arrest. Today we are going to discuss generically with respect to a Supreme Court judgment which has, you can say, read down, or you can say which has limited the scope of the arrest. Supreme Court, while giving the verdict, has also mentioned that no special statute can be above or can be beyond the contours or the limits of the Constitution. If the Constitution gives a right, fundamental right to a citizen where he should be announced or he should be informed with respect to grounds of arrest, and he should also be presented before an authority within 24 hours, then the general law as well as the special law cannot go or act beyond it. Also, the Supreme Court has issued a certain warning that the limitation period, or you can say the time period under which an accused is kept in custody, also has to be within permissible limits. The enforcement agencies cannot make an arrest merely based on inferences. हेमंत सोरेन के मामले की अगर हम बात करें तो उनके मोबाइल फ़ोन में ईडी को वो प्लॉट की फ़ोटोग्राफ मिल गई, और उस प्लॉट की फ़ोटोग्राफ के साथ एक ब्लूप्रिंट मिल गया एक होटल का जो वो बनाने की प्लानिंग कर रहे थे. सिर्फ इस बेसिस पे हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था. अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो ECIR फाइल हुई, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स फाइल हुई, जो 18,000 पन्ने से भी ज़्यादा की हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल एक प्राइम अक्यूज्ड की तरह नहीं देखे गए. येट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा गया. हेमंत सोरेन को अपनी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ गया. तो इस कदर जो लॉ का मिसयूज़ है वो हमारे सामने आ रहा है. इसीलिए ये वाले टॉपिक को हम डिटेल में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं. जहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखिएगा कि ये क्रिमिनल लॉ का हमेशा प्रिंसिपल है क्या, कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन.
बिकॉज जेल करना मतलब किसी भी इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 जो है, दैट इज लाइफ एंड लिबर्टी, दोनों में क्या लगाना, कर्टेल करना, दोनों को, लिबर्टी को और लाइफ को, दोनों को कर्टेल करना। तो किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी इतनी आसानी से विदाउट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, राइट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमेशा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा जब भी आप किसी की लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं। और जो लिबर्टी कर्टेल करने की पावर है, ठीक है, लिबर्टी कर्टेल करने की जो कर्टेलमेंट की पावर है, वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी जस्टिफाइड होनी चाहिए, और जस्टिफाइड के साथ साथ वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। अदरवाइज हमेशा आपको जमानत दी जाएगी, राइट। अगर किसी ऑफेंस को नॉन बेलेबल की तरह क्लासिफाई किया गया है तो बेल तो वैसे भी नहीं मिलती, राइट। लेकिन अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बेल मिल जाती है, बेल मिल जाती है। लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल जो है हमेशा ऐसे केस में देखा जाता है जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जहाँ पे ज़मानत नहीं मिलेगी और ऑफेंस कॉग्निजेबल है, पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है, तो उसमें जज जब बेल ज़मानत की एप्लीकेशन को सुनवाई कर रहा होता है तो इस प्रिंसिपल को हमेशा दिमाग में रखता है, राइट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तुरंत सामने से आप बेल डिनाई कर देते हैं, हियरिंग में डिले होता है और अलग अलग केसेस को आप अलग तरीके से लिस्ट करते हैं, इससे क्रिटिसिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, राइट। क्रिटिसिज्म इज टू बी सीन। नाउ दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ केसेस वेयर रिलीफ वाज सॉफ्ट अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक PMLA एंड UAPA. Supreme Court has been an advocate and upholder of individuals' right to life and personal liberty. But some of the decisions in the past years have ended up garnering much public attention because the Supreme Court, judgment have made sure that bail is the rule and jail is an exception is not always followed. Is not always followed. Now this is why we need to lay emphasis on this. कि ये जो प्रिंसिपल है ये ओवरटर्न कब होता है। आगे आपको दिखाई देगा कि जो PMLA और UAPA के अंदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन करने की बात होती है। हमेशा आपको पता है कि जैसे ही अरेस्ट होता है तो अरेस्ट को तभी वैलिड माना जाता है जब अरेस्ट मेमो साइन होता है। और अरेस्ट मेमो में दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला, अरेस्ट मेमो में डेट ऑफ अरेस्ट मेंशन होती है। अरेस्ट मेमो में डेट ऑफ अरेस्ट मेंशन होती है। अरेस्ट मेमो में टाइम ऑफ अरेस्ट मेंशन होता है। अरेस्ट मेमो में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन होता है। और साथ में अरेस्ट मेमो में दो विटनेस भी होते हैं। और जिस टाइम पे अरेस्ट मेमो को बेसिकली ये सब किया जाता है 24 आवर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। 24 आवर इज कैलकुलेटेड, राइट। 24 आवर्स इसके बाद कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसके बाद राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट होता है आपके पास। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट। है ना, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट होता है। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट जैसे ही आपके पास आ जाता है, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े गए, तो आपकी जो कस्टडी है, कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड। कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड। और उसके बाद जो आपने कस्टडी देखी है, यही वो कस्टडी है जो आपको सुनाई देगी हमेशा। कभी आप सुनोगे तो आपको कस्टडी दिखाई देगी, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में आप लोकल पुलिस स्टेशन में रहते हो। पुलिस कस्टडी में आप लोकल पुलिस स्टेशन में रहते हो। आप स्टेशन हाउस ऑफिसर के अंदर रहते हो। और जुडिशियल कस्टडी में आप डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर रहते हो, जिसमें आप एक जेलर के अंदर रहते हो। और आपको पता है कि जेलर और स्टेशन हाउस ऑफिसर दोनों एक ही बात नहीं है, जिसको हम हिंदी में यूजली कहते हैं दरोगा या थाना इंचार्ज, TI के नाम से कहते हैं, थाना इंचार्ज।
और जेलर जो होता है वो अलग होता है, ये एक आईपीएस ऑफिसर होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होगा, एक पीसीएस ऑफिसर होगा, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी ये कौन ग्रांट करता है? ग्रांटेड बाय कोर्ट होता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? फॉर फैसिलिटेटिंग टू थिंग्स। पहला, स्मूथ एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा, व्हाट इज द सिंपल सेकेंड ग्राउंड? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट। तभी जाके ये पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या की जाती है? ग्रांट की जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? और ये नॉर्मल क्रिमिनल लॉ है, दिस इज नॉर्मल क्रिमिनल लॉ। अब या यूं कह लो कि नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है। तो अरेस्ट के साथ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होना, अरेस्ट मेमो का प्रॉपरली साइन होना, उसमें सब कुछ प्रॉपरली इंडिकेटेड होना, उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद आपकी पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड करना, जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करना, ये सब पूरा प्रोसीजर है। लेकिन एक सवाल हमारे मन में फिर भी आता है कि कस्टडी इज एक्सटेंडेड बट अंटिल व्हेन? ठीक है। तो यहां पे जो नॉर्मल, हमारे यहां पे जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसमें कुछ डेज मेंशन्ड है, जहां पे एक तरफ 14 डेज की पुलिस कस्टडी की बात होती है, 60 डेज तक की कस्टडी की बात होती है, और 90 डेज की कस्टडी की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें और के साथ लगेंगी, और ये अलग अलग केसेस में बात होती है, विच इज़ नॉट द स्कोप एंड सब्जेक्ट। ये अभी हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन आपको यूं पता होना चाहिए हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन अभी ये है नहीं, इसलिए इस प्रिंसिपल पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में क्या बात हमें समझनी है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में जो मेन पॉइंट ये है कि सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है, उसमें अक्यूज्ड कैन बी ग्रांटेड बेल ओनली when the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he has not committed the offense. Usually क्या होता है? Usual normal cases में क्या होता है? Usually opposite happens. मतलब prosecution has to lead evidences indicating that the offense was committed by accused only. And here what happens, if evidence is submitted by the prosecution, it is enough. It is enough to deny bail. Right? And the second condition is not likely to commit an offense while on bail. Under section 43D of UAPA, 43D subsection 5 of UAPA, bail cannot be granted in case there are reasonable grounds to believe that the accused is prima facie guilty. Now, what are the source of the reasonable grounds? Whatever is the evidence which is submitted by the prosecution, okay, the agency at the time of this. तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यार जो अरेस्ट है ना वो तो तय है और जमानत इतना लेना आसान नहीं है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट खुद आया, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार अब हमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, राइट। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस जजमेंट के अंदर उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अरेस्ट को वॉइड बोला, राइट, जो कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है अंडर पीएमएलए। और मेन पॉइंट क्या है कि अगर ईडी अरेस्ट कर रही है, ईडी मेकिंग एन अरेस्ट
हैज टू प्रोवाइड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, has to provide for grounds of arrest as well, right? And that too must be in writing. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तुम्हारे घर के सामने आए, दरवाजे के सामने आए और बोले कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है और ओरली आपको बताए और आपको लेके चले गए, वो वैलिड अरेस्ट, लॉफुल अरेस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली समझनी चाहिए, बिकॉज हमारे सामने जो क्रिमिनल लॉ के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आ सकते हैं, ऐसे ही देखने को मिल जाएगा अपने को। तो ये चीज़ समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया है और बोला है कि सिर्फ पढ़ देना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को इनफ नहीं होता है, आपको बेसिकली राइटिंग में देना है। कोर्ट सेड द सेम डिड नॉट फुलफिल द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड नो पर्सन अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड सेक्शन 19(1) ऑफ PMLA। तो सेक्शन 19(1) of PMLA is analogous to Article 22 Clause 1 of Constitution। अगर ये स्टेटमेंट हम लिख दें तो क्या क्लार्ट कंसोर्शियम अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछ के आपसे बोले कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप हमेशा क्या मार्क करोगे? दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आगे देखिए, ये पंकज बंसल का केस है जिसमें उसने बोला कि रिटन ग्राउंड्स होने चाहिए ऑफ अरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, और उस बेसिस पे उसने क्या बोला? अरेस्ट को वॉइड कर दिया। अगर रिटन ग्राउंड्स नहीं है, अगर रिटन ग्राउंड्स आर मिसिंग, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट क्या होगा? अरेस्ट जो है वो कैसी हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। जब अरेस्ट वॉइड हो जाएगी तो इमीडिएट रिलीज करना पड़ेगा, इमीडिएट रिलीज करना पड़ेगा, राइट? That a copy of written grounds of arrest is furnished to the arrested person as a matter of course and without exception. Notably, it was also held that filing of a charge sheet would not validate an illegal arrest and remand order. Filing of a charge sheet. अच्छा, एक चीज़ और भी आपको जनरली पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड, इसके जो राइट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अक्यूज्ड के जो राइट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है? और जो भी राइट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली टिल फाइलिंग चार्जशीट, ओनली टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, ठीक है? मान लो अक्यूज्ड ये बोले कि जो पुलिस ऑफिसर है, जिसको आप लोग यूजुअली नहीं समझते हो, आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आईओ जो है वो बायस्ड है और वो एविडेंस प्लांट कर रहा है, वो एविडेंस प्लांट कर रहा है। तो ये आप कब एलिगेशन लगा सकते हो? कब आप कह सकते हो? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कब तक होती है? तो एफआईआर होती है, ठीक है? एफआईआर के बाद एग्जामिनेशन बाय पुलिस चालू हो जाता है, एग्जामिनेशन बाय पुलिस जो है चालू हो जाता है, जिसको आप कहते हो इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। एग्जैक्ट वर्ड एग्जामिनेशन कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या प्रिपेयर होती है? एक पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, और पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने जाती है तो उसको कहते हैं चार्जशीट। अब जैसे ही चार्जशीट आ गई तो इन्वेस्टिगेशन खत्म, पुलिस का रोल खत्म, अब कोर्ट का रोल चालू होता है आफ्टर चार्जशीट। तो अक्यूज्ड की पावर जो कुछ भी है, ठीक है, अक्यूज्ड की पावर जो कुछ भी है वो इतने पूरे प्रोसेस में बहुत लिमिटेड है, लेकिन पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है। वो ये बात कहाँ कब कह सकता है? बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कह सकता है। ये चीज़ें भी जनरली अपने को समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही हैं तो समझिए काफ़ी टेक्निकल होता है क्रिमिनल लॉ, और वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, बट हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली सिंपल है कि फाइलिंग ऑफ अ चार्जशीट वुड नॉट वैलिडेट एन इलीगल अरेस्ट
एंड रिमांड ऑर्डर। और इलीगल अरेस्ट का जो रीजन है वो क्या है? इलीगल अरेस्ट का सिंपल रीजन है नॉट फर्निशिंग और नॉट एक्सप्लेनिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ये आर्टिकल सेक्शन 19 और आर्टिकल 22 दोनों का वायलेशन है। आगे देखिए, इसमें यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बोला कि अक्यूज को क्या करना है, तुरंत रिलीज कर देना है। इसी तरीके से पहला भी एक मामला आया न्यूज़ क्लिक के फाउंडर का, परवीर पुरकायस्था जिसका नाम था, प्रवीर पुरकायस्था। उनके ऊपर एलिगेशन ये था, यूएपीए के अंदर उनके खिलाफ अपराध बुक हुआ था। लास्ट ईयर 3 अक्टूबर को उनको कस्टडी में ले लिया गया था। आरोप यह था कि चाइना की तरफ से फंड आ रहे हैं कि वो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाएं इंडिया में। पुरकायस्था को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया क्योंकि कहा गया कि पंकज बंसल का जो जजमेंट का मैंडेट है वो दिल्ली पुलिस ने फॉलो नहीं किया और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वर नॉट एडिक्वेटली फर्निश्ड टू हिम इन राइटिंग। नाउ दिस अगेन इज द प्रिंसिपल दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आपके लिए ये हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। It was the state's agency case that the grounds of arrest were supplied to Purkayastha via the arrest memo as well as the remand application. The mandate of Pankaj Bansal was satisfied. However, court disagreed, stating that arrest memo contained reasons for arrest and not the grounds of arrest, and the remand application was not served prior to passing the order on remand, order of the remand. Right now, remand application और order of the remand में क्या difference है कि रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के भी पास जाती है, कोर्ट के सामने डाली जाती है और अक्यूज्ड को भी बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है और रीजंस फॉर अरेस्ट है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ऑथर के, मतलब जज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से? तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और रीजंस ऑफ अरेस्ट में मेन बात यह है कि जो रीजंस फॉर अरेस्ट हैं वो सिंपली आपको बताएंगे कि आपके खिलाफ ये अपराध दर्ज हुआ है इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा जो कि प्राइमा फेसाई इंडिकेट करेगा कि जो आरोप लगे हैं, जो एलिगेशंस हैं, राइट, एलिगेशन से कैसे अक्यूज्ड कनेक्टेड है। अगर एलिगेशंस और अक्यूज्ड के बीच का ये जो कनेक्शन है, अगर ये स्टैब्लिश हो रहा है तो वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होगा। रीजंस फॉर अरेस्ट कि हम आपके खिलाफ एक सूचना आई, अपराध दर्ज हुआ है और आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये रीजन ऑफ अरेस्ट हो जाएगा। नहीं, रीजन ऑफ अरेस्ट में एम्बिग्यूटी रहेगी और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या रहेंगे, पर्सनल होंगे, स्पेसिफिक होंगे टू द पर्सन अरेस्टेड एंड हैव टू बी नेसेसरीली सप्लाइड। यूएपीए और पीएमएलए को ध्यान से देखा जाए और लैंग्वेज सेक्शन 19 की अगर देखें, पीएमएलए की, और सेक्शन 43B और यूएपीए की, जिसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है, तो बोला जा रहा है कि देयर वाज नो सब्सटैंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 19 पीएमएलए का और सेक्शन 43B यूएपीए का, ये तीनों जो हैं ये प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, जिनमें से एक आपका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से ये दोनों प्रोविजंस होंगे, इनके वायलेशन में नहीं हो सकते। इसी को क्लैट कंसोर्शियम कहता है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। ठीक है दोस्त, मेरी बात हो सकता हो समझ में आ रही हो। अब इसके लिए आपके लिए मैंने सेक्शन 19 के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को एक बार पढ़ने के लिए आपको बोला है कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल इन हिज पोजेशन, यानी जो भी उसने एविडेंस इकट्ठा किए हैं, अगर इफ ही इज हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, रीजन फॉर सच बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग that any person has been guilty of an offense punishable under this act, he may arrest such person. Again देखिए, may arrest है, यानी जरूरी नहीं है, not always to arrest, not always required to arrest. ठीक है, and shall as soon as may be inform him of the ground. अब वर्ड यहां पे shall है और यहां पे may है, तो जरूरी नहीं है कि हर समय अरेस्ट रिक्वायर्ड हो, और अगर अरेस्ट हो रही है
तो ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो अरेस्ट का मिसयूज तो हो ही रहा है, मैंडेटरी अरेस्ट कर रहे हैं, तो बेल कोर्ट ने बोला भाई अरेस्ट कर लिया आपने, तो बेल भी आसानी से नहीं मिल सकती है, लेकिन उनको ग्राउंड्स अगर आपने नहीं बताए तो सेक्शन 19 का वायलेशन हो गया और अरेस्ट इलीगल हो गई। और उसी तरीके से क्लॉज 2 और क्लॉज 3 भी हैं जो कि आप आराम से रीड कर सकते हैं, हालांकि जिनका हमारे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सेक्शन 19 क्लॉज सबसेक्शन 1 सॉरी क्लॉज 2 क्लॉज 3 कह रहा हूँ, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 का डायरेक्ट लेना देना है। आर यू फॉलोइंग दिस? तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब जो मेन पॉइंट ये है, वही मैंने आपको पूरा जो पॉइंट यहाँ पे बताया, इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट अरेस्टिंग ऑफिसर का सब्जेक्टिव ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अरेस्टिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये अपराधी है, राइट? अगर उसका सब्जेक्टिव ओपिनियन है तो इट मस्ट बी फाउंडेड एंड बेस्ड ऑन फेयर एंड ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द मटीरियल as available with them, and on reading of the reasons to believe, a court must form a secondary opinion, right, on the validity of the exercise undertaken for compliance of section 19 when the arrest was made. इसका मतलब अगर ईडी को लग रहा है, ईडी ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है, ठीक है, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है, इन्फ्रेंस ड्रॉन दैट ए इज द मेन अक्यूज्ड एंड ए ही is responsible for everything, then it is also the duty of the court to form an opinion on this. और कोर्ट कैसे ओपिनियन बनाएगा? कोर्ट फॉर्म्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, बेस्ड ऑन एविडेंसेस प्रोड्यूस बिफोर इट। यानी कि इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि मियर इन्फ्रेंशियल रीजनिंग, मियर इन्फ्रेंशियल रीजनिंग बाय द ईडी अंडर पीएमएलए does not necessitate arrest। समझ गए? does not necessitate arrest, राइट? लेकिन इसमें पता है आपको फिर फाइनली कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन जो होता है वहां पे मैं अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूं। कंफ्यूजन यहां पे ये होता है कि ड्यूरिंग बेल, लॉ ये भी कहता है ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग्स और बेल हियरिंग्स the court need not go into the merits of the case, and how are these merits of the case determined? What is the exact meaning of this? मतलब perusal of evidences, ये ट्रायल का पार्ट होते हैं, दीज आर ऑल ट्रायल का पार्ट, एंड बेल की प्रोसीडिंग इज नॉट अ ट्रायल का पार्ट। समझ गए? बेल जो पूरा प्रॉब्लम होता है, जो बेल हियरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है? प्री ट्रायल प्रोसीजर होती है। पूरा कैसा प्रोसीजर है? प्री ट्रायल प्रोसीजर है। ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। प्री ट्रायल प्रोसीजर और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। जो परयूजल ऑफ एविडेंस है, मेरिट्स ऑफ द केस है, वो ट्रायल का पार्ट होता है। तो सवाल तो यही है ना कि अरे सर, जब ये ट्रायल का पार्ट होता है और यहाँ पे कह रहे हो कि कोर्ट को सेकेंडरी ओपिनियन बनाना है, तो कोर्ट कैसे बनाएगा? अब यहाँ पे ही आपको समझना पड़ेगा, जो हमारा लॉ कहता है कि जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका जो पावर है वो काफ़ी वाइड एम्पलीट्यूड का है, और दे मस्ट बी फियरलेस एंड दे मस्ट नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। बस दो ही चीज़ें इन लोग को ध्यान में रखनी है कि इनको फियरलेस होकर काम करना है और पॉलिटिकली मोटिवेट होकर नहीं काम करना है। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास आप देख सकते हो उनका सेकेंडरी ओपिनियन बनाने का इतना बड़ा, इनके पास सेकेंडरी ओपिनियन बनाने का इतना वाइड स्केल का पावर है, और ये मेरिट्स पे भी केस पे नहीं जा सकते। तो मेरिट्स पे जा नहीं सकते। 18,000 पन्ने का 50,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट दो, ये उसको रीड करेंगे नहीं, राइट? लेकिन ये सेकेंडरी ओपिनियन बनाएंगे। अब सेकेंडरी ओपिनियन में आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ग्राउंड निकाला।
सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों ने क्या ग्राउंड रखा कि सर राइटिंग में और ग्राउंड्स दोनों क्या थे, एब्सेंट थे। तो अब कोर्ट ने क्या कह दिया, कोर्ट ने क्या कह दिया, अरेस्ट कैसी हो गई, वॉइड हो गई। तो समझ में आया तुमको कि लॉ जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का क्लास है ख़त्म होता है। आपको इस क्लास में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सारे थॉट्स आपके कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, एंटैंगल्ड हो गए होंगे, बट मेरा पर्पज़ ही यही था। क्रिमिनल लॉ को कभी भी इतना ईजिली, इतना कहते हैं ना सिंपली नहीं समझा जा सकता है। क्रिमिनल लॉ में कई सारी चीज़ें एक साथ इंटरप्ले में होती हैं। लेकिन एज अ क्लैट एस्पिरेंट आपको सिर्फ एक बात समझनी थी कि अरेस्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तुरंत बताएंगे, राइट, और राइटिंग में बताएंगे। अगर ये काम नहीं किया है तो पीएमएलए, यूएपीए, चाहे किसी भी ऑफेंस के अंदर आपकी अरेस्ट को वॉइड माना जाएगा एंड यू आर बाउंड टू गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट। वेल, दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।